आपके ख्याल में कौन सी ऐसी इमर्जिंग फील्ड्स हैं इंजीनियरिंग के अंदर, कंप्यूटर साइंस के अंदर, जो हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को ऑप्ट करनी चाहिए, कीपिंग इन माइंड द पेस ऑफ एआई एंड सो ऑन? आजकल काफी रुझान है लोगों का कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। ये वो फील्ड्स हैं जो कि are opted very highly by the students, or obviously the job market is also doing quite great compared to the other fields. But मेरा हमेशा से ओपिनियन रहा है कि हमें, मुझसे अक्सर पेरेंट्स भी पूछते हैं कि आप हमें गाइड करें, स्टूडेंट्स भी पूछते हैं कि किस एरिया में हम जाएं। आई ऑलवेज से दैट यू नीड टू परस्यू योर पैशन। मेरा तो बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि आप जो भी करें, इफ यू आर गुड एट इट, एंड यू कैन ओनली बी गुड एट इट इफ यू आर पैशनेट अबाउट इट। तो आपका जो पढ़ाई है, आपका काम है, शुड बी more like a hobby to you or a passion to you, that you love to do that, and that would make you the best in your field. And if you're best in the field, there would be jobs available for you. तो मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि don't look at the market trends and what's in there, and as far as job ratings are concerned, you always pursue your passion and go with that. Okay. पाकिस्तान में जो यूथ है उसकी टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को कैसे यूज करें फॉर कंट्रीब्यूटिंग इफेक्टिवली लोकली एंड ग्लोबली? टेक्नोलॉजी हैज अ लॉट ऑफ बेनिफिट। पहले जो काम हम शायद सोच भी नहीं सकते थे, अब हम कर सकते हैं थ्रू टेक्नोलॉजी। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर आप सोशल मीडिया की पावर को देख लें, यू कैन इन्फ्लुएंस पीपल बाय सिटिंग इन योर होम। लुक एट दीज एप्स दैट हैव बीन डेवलप्ड। ई-हेल्थ में इतना काम हो रहा है, एजुकेशन सेक्टर में आप अपने घर बैठे you can educate people. So there is so much that you can do with the technology. देखिए, मेरा ख्याल ये है कि अगर हम वर्ल्ड लेवल के प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करें तो इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी वेरी चैलेंजिंग। बट मैं हमेशा ये कहता हूँ कि we need to look at our society. We need to look at the needs and requirements and problem in our society and try to fix them using technology. Or technology can be a factor that facilitates your integration in the society and to benefit the society. तो उसको definitely utilize किया जा सकता है, but always start small, be focused. और हमारे यहाँ तो हेल्थ टेक में काफी काम हो सकता है, एजुकेशन टेक में, you know, there's so much that we can do. एग्रीटेक जो कि हमारा एग्रीकल्चर है, दैट नीड्स सो मच इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि हम somehow नहीं कर पा रहे. तो these are the areas that we should focus on. But again, our societal needs should be the foremost factor. As a pro-rector, what is your vision for improving education system in Pakistan overall? देखिए, quality is the foremost factor to me, always as a teacher, as a pro-rector. Quality of education is something that is very important, and quality of education would only come if we make sure that we are involving all the stakeholders. It's all about the stakeholder involvement, in my opinion. देखिए, जब मैं कहता हूँ stakeholders, तो हमारे बड़े बड़े कुछ stakeholders हैं. We have the students, we have their parents who are sponsoring their education. We have the industry, because the students are going to graduate and work in the industry. Then we also have our international peers. So we need to make sure that we give all the students a very wholesome experience, so that they connect with the industry, they get opportunities to even connect with the international partners, and they contribute towards the society as well. तो उनको हमने ना सिर्फ वो means देने हैं, बल्कि उनको वो training भी देनी है how to make these connections. दूसरा, क्वालिटी में आई ऑलवेज से कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वी टीच अ लॉट ऑफ थियोरेटिकल स्टफ इन आवर क्लासरूम्स, बट उनको हाउ टू अप्लाई देम इज समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड एप्लीकेशन कैन हैपन इन द लैब्स, बट द रियल एप्लीकेशन वुड ओनली हैपन व्हेन यू इंटीग्रेट योर स्टूडेंट्स टू द इंडस्ट्री, you bring them to the society so that they can work with those people there. So that kind of experiential learning is something that is very close to my heart. Also, international connections is something that I always want to strengthen. हर student को शायद हम ये experience ना दे सकें कि they have an international exposure, but we always talk about a concept that is called internationalization at home.
ताकि हम उनको we bring foreign experts, foreign faculty to our university so that they can interact with the students. We always have these centers, like we have the China Studies Center, we have the Lincoln's Corner from the US, because they talk about their cultures, their society. We integrate international students and faculty to our communities ताकि वो भी exposure मिले. So these are some of the things that are always at the forefront of my decision making as far as the project is concerned. जर्मनी की एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ गोटिंगन, जहाँ से कोई 47 नोबेल लॉरिएट प्रोड्यूस हुए हैं. इमेजिन है. Definitely. तो लेकिन पाकिस्तान में हमारे यूनिवर्सिटीज में वो इंटेलेक्ट या वो चीज़ उस कैलिबर के लोग अभी हमारी यूनिवर्सिटीज प्रोड्यूस नहीं कर रही हैं. तो गवर्नमेंट लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे क्या ऐसी रिफॉर्म्स या स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स होनी चाहिए कि हम भी होप करेंगे अगले 30, 40, 50 ईयर्स में कोई एक नोबेल लॉरिएट हम भी क्लोज टू दैट विल बी एबल टू प्रोड्यूस दैट बेसिकली. देखिए माशाल्लाह, अगर हम अपना जर्नी देखें तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि HEC ने जो ट्रांसफॉर्मेशन की इन अर्ली 2000s, दैट वाज अ मेजर माइलस्टोन इन आवर हायर एजुकेशन. और उसके बाद अगर हम देखें हमारा जर्नी पिछले 20-25 साल में, तो वी हैव गॉन वे बियॉन्ड वी वर एट दैट पॉइंट. मुझे याद है जब मैं यूनिवर्सिटी गया था तो मेरी यूनिवर्सिटी में 1 या 2 PhD फैकल्टी मेंबर्स थे. नाउ यू हैव सो मेनी PhD फैकल्टी मेंबर्स. हमारी रिसर्च की अगर आप आउटकम्स देखें, एंड वेरी इम्पैक्टफुल रिसर्च दैट हैज कम अक्रॉस, तो ये इंटरवेंशन जो शुरू हुई थी उस टाइम पे, उसका नतीजा है जो कि हम अब देख रहे हैं. मतलब आवर स्टूडेंट्स आर पब्लिशिंग एट टॉप वेन्यूज इन टर्म्स ऑफ जर्नल्स. पेटेंट्स हमारे कुछ कमर्शलाइज हो रहे हैं. तो वी आर moving towards that path. Inshallah, in the future, again, I'm a very optimist person, and I hope that we would get Nobel laureates as well. But we need to keep going towards those lines. देखिए, government की support is very important. Unfortunately, that is on the decline. So we need to pitch in more funds into higher education, into research. और हमें focus थोड़ा सा करना चाहिए foundational research की तरफ. देखिए, practical research is very important. I always say that we need to solve societal problems. पर जब आप Nobel laureates की बात करते हैं तो they are fundamentally looking at foundational research topics, fundamental research. तो उसको we need to incentivize that. It's a very costly affair, but the government needs to support that. और इवन अगर हमारे पास 1-2 भी उस लेवल की रिसर्चर्स आ जाएं जो कि आप जिस तरह की बात कर रहे हैं, तो दैट कैन चेंज द होल इकोनॉमी ऑफ द कंट्री. So this is something that we need to focus on, and I'm very hopeful. Inshallah, we will get more Nobel laureates as we move along. Inshallah. Okay. अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है कि टीचिंग, जैसे हमने पहले भी बात की, हमारे जो कलीग्स सिंपल PhDs करके आते हैं जिनको हम हायर भी करते हैं यहाँ पे भी, बाकी यूनिवर्सिटीज के अंदर भी, तो एट टाइम्स देखा गया कि उनकी जो टीचिंग की स्किल्स हैं दे आर नॉट एट पार टू द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स. तो क्या हमें हायरिंग के अंदर कोई ऐसे चेक्स या कुछ देखना चाहिए कि उन स्किल्स को भी हम चेक कर लें? और अगर हमने हायर कर लिया है तो जैसे नस्ट है या बाकी सिमिलर यूनिवर्सिटीज हैं, वो क्या ऐसा ट्रेनिंग के तौर पर कर सकती हैं ताकि टीचिंग की जो स्किल्स हैं उनको इम्प्रूव किया जा सके, बिकॉज दैट इज एसेंशियल पार्ट ऑफ बीइंग ए टीचर. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे मैंने आपको पहले आपके क्वेश्चन के बारे में भी कहा शुरू में कि आई वाज वेरी लकी कि आई टुक दैट 1 सेमेस्टर लॉन्ग कोर्स ऑन टीचिंग मेथोडोलॉजीज. जबकि आई वाज वेरी पैशनेट अबाउट टीचिंग अपने बचपन से, लेकिन जो मैंने उसमें सीखा, जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग के थ्रू सीखा, दैट रियली ग्रूव माय टीचिंग स्टाइल. आई कुड सी के हाउ टू मेक श्योर दैट एवरीबॉडी इज टेकन अलोंग इन अ क्लासरूम. तो उस तरह की प्रोफेशनल ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. यूजुअली जब हम हायर करते हैं, वी हायर पीपल हु हैव समहाउ have a first hand experience in research because of their PhD. उन्होंने research के aspect को तो cover किया होता है, but teaching का they don't have the first hand experience. तो उसमें at NUST हमने अपना एक NUST Teaching and Learning Center establish किया, and somehow I've tried to replicate the model that I got the opportunity to learn from, जो हमारा 1 semester long teaching course था. We are giving that opportunity to every teacher who joins us, every faculty member. उनको हम वो 8 से 10 modules का एक course करा रहे हैं through that center. But that is very important. और we learn as we move along. I'm still learning so many things in my life. Everybody is learning. तो इस तरह की conversations should happen between the faculty in the departments, in the schools, कि how to have effective teaching methodologies. They should share their best practices. और आपने जो जिक्र किया, that is very important.
तो वो एक प्रोफेशनली इस चीज़ को वी नीड टू लुक एट द कंट्री लेवल एज वेल कि किस तरह से हम टीचर ट्रेनिंग